maybe this is the only reason why someone would just want to buy GT3 RS. Beautiful, beautiful, beautiful. So this video is about how it feels to be living with a Porsche GT3 and can this be used as a daily driver or not? क्योंकि बहुत सारे लोगों को like Porsche GT3 and GT3 RS is their dream cars, and dream car मतलब they are like okay to like get used to it, and like whatever you tell them they will be like alright, I'm good with it, I can just ride it daily. But there are a lot of factors again, and I am one of them. जब मेरे को कोई भी चीज़ अच्छा लगता है, I'm like whatever it is, I'm going to get used to it. Whatever it is, I'm going to get used to it. For example, I ride a BMW M1000 RR, which is absolutely not a road motorcycle. It's absolutely only for the track, I would say, but still I ride it almost every day, and I love it, and I have got used to it, and I absolutely love it. But a lot of people, they are like नहीं, हमें S1000 लेना चाहिए. अगर हम स्ट्रीट पे चलाते हैं हम S1000 लेंगे, अगर ट्रैक पे चलाते हैं then maybe we will ride the M1000 RR. Just take it ठीक है. So ये वाला वीडियो में we are going to get all those factors lined up, discussing can the Porsche GT3 and GT3 RS really be a daily driver. क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या फैक्टर्स लाइक आफ्टर ड्राइविंग फॉर लास्ट 350 किलोमीटर्स, व्हाट ऑल फैक्टर्स आई हैव ऑलरेडी सीन. सो मैं सारा चीज़ अपन क्या करेंगे एक एक करके आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू एंड वी विल डिस्कस सो दैट एटलीस्ट यू विल गेट द कंप्लीट क्लियर आइडिया. ऑलराइट. And the most important add-on to have in a GT3 RS is the axle lift. ये वाला हमारा तो रेसिंग फ्रंट एंड, आगे वाला थोड़ा ऊपर हो जाए. कभी भी अगर आपको स्पीड बम्प्स या कुछ भी मिलते हैं एनीथिंग यू एब्सोल्युटली मेक श्योर टू गेट इट अप. एंड यहाँ पे ऑप्शन भी है स्टोर लिफ्ट सेव. ओके, तो सेव जैसे ही मारोगे तो एटलीस्ट दिस पार्ट इज गोइंग टू गेट सेव. तो व्हेनेवर आई एम क्रॉसिंग थ्रू दिस सेम राउट, गाड़ी ऑटोमेटिकली उठ जाएगा ऑटोमेटिकली. सो बेसिकली इट्स सेविंग द जीपीएस लोकेशन फॉर द एक्सेल लिफ्ट. एंड जैसे ही वो थोड़ा स्पीड जाएगा, आई थिंक प्रॉब्ली इट क्रॉसेस 25 or 35 किलोमीटर पर आवर, ऑटोमेटिकली वो नीचे भी आ जाएगा. So for a lot of people, GT3 RS are like their dream cars, and अगर उनको पोर्शा में कभी भी कोई भी टॉप ऑफ द लाइन कार लेना होगा, it has to be like the GT3 RS. उसके बाद और कोई कार्स है ही नहीं, and it has to be the best of the best. मतलब आप कोई भी कार्स ले लो, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, McLaren, anything all over the world. If there is only one single car, people are being asked to like choose one, they will always choose Porsche GT3 RS or maybe R3. ठीक है, GT3 R3. So now about this thing, like even I would just like select it without even a blink of an eye. But today after like driving for 300 or 350 kilometers odd, I believe we need to revisit this decision, and maybe और थोड़ा और एक बार अपने को decision थोड़ा मतलब अच्छे से थोड़ा सोच के लेना पड़ेगा, because there are a lot of factors. Because I need something for a daily driving thing, because of course I would be driving the Mercedes as well, but I need something which I can absolutely ride with glory and like whole day. Even if I want to go for like 200, 300, 400 kilometers, I can actually ride. Even if I'm going for the track days, I can ride as well. So daily driving के लिए भी बहुत सारा चीज़ सोचना पड़ता है, because if you're someone who is almost spending close to $500,000 on a car, of course it needs to be a very wise decision. तो ये वाले वीडियो में I'm going to show you what are the practical stuff जो कि actually makes it tough for the GT3 or GT3 RS to be डेली ड्राइविंग. मैंने भी सोचा था कि इट कैन ईजिली बी यूज एज डेली ड्राइविंग, बट देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स यू एब्सोल्युटली नीड टू कीप इन माइंड बिफोर इवन डिसाइडिंग टू बाय दिस कार फॉर ए डेली ड्राइवर कार. एनीवेज, चलो एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. सो एटलीस्ट यू विल हैव ए क्लियर आइडिया. सो इन केस समडे यू गेट रिच और यू आर ऑलरेडी रिच, you have the money ready, and if you are looking to buy GT3 or GT3 RS, or even if you have just won an allocation for a GT3 RS, you can absolutely watch this video till the end, so at least you will have a clear idea आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. सो सबसे प्रैक्टिकल वाला चीज़ इज गेटिंग इन एंड आउट ऑफ दिस कार इज़ वेरी टफ. सो नॉर्मली फॉर स्पोर्ट्स कार, दिस इज हाउ यू सेड, यू गेट इन
and get your leg something like this. But this is only when if you're someone who is fit like me. अगर आप मोटे हो then this car directly fails for you. So अभी बहुत लोग ऐसे नहीं बैठते हैं, then बहुत लोग ऐसे भी बैठते हैं. Like you can see that how struggle the thing is, like if you go inside. And अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी घुसते हैं, कोई ऐसे घुसता है, ऐसे घुसता है, ऐसे घुसता है, ऐसे घुसता है, then you will be like उई उई उई. So getting in is very tough and getting out तो सबसे ज़्यादा tough getting out. And getting out आप कैसे भी निकलो you are going to struggle. So ऐसे भी निकलो भी तो आप इसमें स्क्रैच करोगे, यहाँ पे लगेगा आपका पैर, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा. So no matter how you get out, you will end up getting your shoe bruises or something here and there. So anyhow आपको डेली ड्राइविंग के लिए आपको getting out of this car is very 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 tough. So getting in still very tough. So you have to get in something like this, drive, and once you are done you have to like get out something like this. So kind of tough. So ये जो seats है, this is called carbon bucket seats. You can see that it's totally carbon fiber. पीछे पूरा carbon fiber है. And यहाँ पे आपको adjustment only दो ही मिलते हैं. या तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, नहीं तो आपको manually जैसे वैगनआर में करते हो वैसे इसको आगे पीछे कर सकते हो. There is nothing electronic about it. Only seat ऊपर नीचे हो सकते हैं तो आगे पीछे हो सकता है. You cannot even get this front or back. But if you're looking to go for that, then maybe you have to go for sports seat. But again, sports seat be almost something like this. But still, I would say, अगर आप GT3 या GT3 RS लेते हो, go for the sports seat क्योंकि carbon bucket seats are very tough to get in and it looks good and track के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है. But the only thing is like getting in and out is a challenge. But just look at this, man. It just looks so good. पूरा carbon fiber है, पूरा carbon fiber है. And this is how it looks. ये पूरा area भी आप देख रहे हो. Extreme, it looks extreme and very wicked good. So configurator में आपको दो ऑप्शंस आते हैं. Either you can go for this carbon bucket seats, नहीं तो आप sports seat के लिए भी जा सकते हो. And both are free. Basically आप इतना पैसा दे रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप sports seat ले लो या तो आप इसको ले लो. So most of the GT3 and GT3 RS carbon bucket seat से आती है क्योंकि आपका रीसेल वैल्यू, अगर आप sports seat लेते हो most of the time रीसेल हो नहीं पाती क्योंकि सारे लोगों को जो भी ये कार चलाते हैं उनको ट्रैक के लिए ही मोस्टली लेना पड़ता है. वो ट्रैक में वो स्पोर्ट्स वो कार्बन बकेट सीट्स ही ढूंढते हैं. तो आपको कार्बन बकेट सीट्स ही मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब भी GT3 एंड GT3 RS देखो आपको कार्बन बकेट सीट्स ही दिखेंगे. बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ फैट या फिर एज्ड एंड इफ़ यू आर नॉट वेरी लाइक एक्टिव डायनामिक, देन मे बी बेस्ट इज स्पोर्ट्स सीट ही ले लो क्योंकि कार्बन बकेट सीट में आप अंदर बाहर हो ही नहीं सकते. विल एंड अप लाइक जस्ट कीपिंग द कार एज ए शो पीस. गो बाय द लुक्स, दिस कार लुक्स जस्ट ब्लडी सो गुड. एंड कंफर्ट एक्सेस नहीं है तो आपको अंदर बाहर जाना पड़ेगा, तो आपको चाबी से ही अंदर बाहर जाना पड़ेगा. एंड जस्ट लुक एट द लुक्स मैन, उफ, इट जस्ट लुक्स सो गुड, ब्लडी गुड. सो यहाँ पे भी फ्रंट नॉस्ट्रिल्स डिज़ाइन. सो नॉर्मली 911 सीरीज़ में नॉस्ट्रिल डिज़ाइन आपको नहीं मिलता है. ओनली 9 GT3 RS ST इसी में, स्पोर्ट्स क्लास इसी में ही मिलेंगे. एंड व्हील भी अगर देखोगे तो समथिंग लाइक दिस. सो डिज़ाइन वाइज इट्स एब्सोल्यूट विकेड. वन मोर इशू इज़ द कार इज़ वेरी लो. अगर देखोगे ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट है ही नहीं. इट्स वेरी 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 लो, पीछे से आगे से. एंड आगे वाला अगर भी आप मतलब एक्सेल लिफ्ट करके भी अगर चले भी जाते हो, द थिंग इज़ द बैक इज़ अगेन प्रीटी डाउन. अगर आप देखोगे एग्जॉस्ट एंड ये जो मतलब डिज़ाइन हुआ है वो भी बहुत नीचे है. मोस्ट ऑफ द टाइम यू मे एंड अप स्क्रैचिंग देम एज वेल. सो आपको एक एड ऑन आपको लेना है. आपको इसके साथ एक आता है, दैट इज़ फ्रंट एक्सेल लिफ्ट वाला एड ऑन. दैट इज़ दिस वन. जब भी आप कोई कहीं भी मतलब बड़े ये में आ जाते हो, इसको आप दबाओगे तो ऊपर चले. बट दिस इज अगेन ए 2 or 3 lakhs समथिंग लाइक दिस फॉर द एड ऑन ओनली. बट ये एड ऑन इज मस्ट हैव फॉर दिस कार. एंड इफ यू आस्क मी अबाउट माई एक्सपीरियंस, आई वुड से दिस कार इज द बेस्ट एक्सपीरियंस इज ओनली आफ्टर 7000 RPM. 7000 RPM के नीचे इट्स मोर लाइक यू आर ड्राइविंग ए GTS या फिर 911 टर्बो या फिर टर्बो S only after 7000 RPM is when you actually feel the GT3 and GT3 RS वाला feel. उससे पहले आपको लगेगा it's basically like a normal 911 itself. So this car is something which doesn't make sense for Dubai again, क्योंकि दुबई में हर जगह कैमराज है. You cannot even go past. Today I was driving for all those 300 kilometers. I believe रोड में एक बार भी चांस ऐसे नहीं मिला जहाँ में मैं 7000 RPM के ऊपर जा सकता हूँ. It was only in the track where I was able to take it like 9, 8, 9 RPM 1000. and वो तभी जाके गाड़ी के actually मतलब it screams. But below that it's like
ओके इट्स जस्ट 911 समथिंग लाइक दिस. सो अगर आपको लगता है कि नहीं ये गाड़ी तो बहुत ज़्यादा लाउड होगी, मैं कहीं भी स्टार्ट करके चले जाऊँगा, कहीं पे भी रोड में जाऊँगा, इट्स गोना बी वेरी लाउड. ऑफ कोर्स इट्स गोना बी लाउड, बट इट्स गोना बी नॉट दैट लाउड कि आपको पूरा मतलब कान ब्लास्ट हो जाए. कान ब्लास्ट होने के लिए आपको 7000 RPM से ऊपर ही जाना पड़ेगा. ऑफ कोर्स ऐसे नॉर्मल स्ट्रीट रोड्स में यू विल नेवर बी एबल टू गेट बियॉन्ड 4 और 5000 में बहुत ही डिफिकल्ट है. 3000 4000 RPM ही रहेगा. तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ बाइंग ए कार जस्ट फॉर द साउंड, आई वुड से, एंड अगर आप दुबई में हो, आई वुड से बेटर टू जस्ट गो फॉर ए GTS. क्योंकि हाँ, अगर आप ट्रैक में जाते हो देन दिस वन मेक्स सेंस, क्योंकि ये ट्रैक के लिए भाई ज़बरदस्ती, क्योंकि रोड पे आपको 7000 RPM क्या 5000 RPM वाला रोड भी नहीं मिलेंगे. 5000 RPM जाते जाते आपको 2 स्पीड टिकट आ जाएंगे. सो टिल यू क्रॉस 7000 RPM यू आर नॉट गोइंग टू गेट, मतलब यू कैन नॉट इवन जस्टिफाई द अमाउंट ऑफ मनी यू आर स्पेंडिंग ऑन ए GT3 or GT3 RS. And since this is a sports race car dedicated for the track, Porsche has actually trimmed out a lot of stuff which should be in the car. For example, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन ये है ही नहीं, तो आपको पूरा अपना दिमाग ही लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये यहाँ पे कोई भी सेंसर वेंसर कुछ भी नहीं है. अगर गाड़ी कोई भी साइड से आएगा आप आराम से ठोक सकते हो. सो इफ़ यू आर नॉट ए वेरी प्रो ड्राइवर हु इज़ नॉट यूज टू दिस मिरर्स वेरी एक्यूरेटली, देन यू में एंड अप हैविंग एन एक्सीडेंट, क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है ही नहीं. पोर्शा GT3 एंड GT3 RS में ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर है ही नहीं, कुछ भी लाइट वाइट कुछ भी नहीं आएगा. एंड द बिगेस्ट थिंग व्हाट इज़ मिसिंग इज़ देयर आर नो फ्रंट सेंसर्स. तो आप कहीं भी अगर पार्किंग करने जाते हो देयर आर एब्सोल्युटली नो सेंसर्स इन द कार. कोई भी सेंसर वेंसर कुछ भी नहीं है. तो आप कहीं भी पार्किंग करो, आपको यहाँ पे आगे वाला को ठोक सकते हो. कहीं भी अगर जा रहे हो रास्ते में जो कर्व वर्व रहता है उसको भी आप ठोक सकते हो, क्योंकि आगे में कोई भी सेंसर नहीं है. अगर आप देखोगे एक भी कोई भी सेंसर नहीं है, तो पीछे आगे वाला कहीं भी आप इजीली ठोक सकते हो. देयर आर एब्सोल्युटली नो सेंसर्स, नो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एज वेल. सो एडेप्टिव रहता तो यहाँ पे आपको छोटा वाला कैमरा मिलता, बट अगेन दैट वुड हैव एडेड टू द वेट. सो उसके लिए एडेप्टिव वाला क्रूज कंट्रोल वो भी नहीं. क्रूज कंट्रोल है बट नॉट एडेप्टिव. सो इन केस इफ यू आर यूजिंग ए क्रूज कंट्रोल यू हैव टू मेक श्योर यू आर ब्रेकिंग, नहीं तो आगे वाला जाके आपका सीधा एक्सीडेंट होने वाला है. एब्सोल्युटली नो सेंसर्स एट द फ्रंट. तो जिसको पार्किंग करने में इशूज़ होता है, ये कार बहुत ही डेंजरस है. यू विल एंड अप स्क्रैचिंग द होल फ्रंट ऑफ इट. एंड बाय डिफ़ॉल्ट रियर सेंसर्स वाला रियर सेंसर रियर कैमरा वो भी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं था. उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा 2-3 लाख. उसके बाद आपको रियर कैमरा मिलेगी, रियर वाली सेंसर मिलेगी, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट. टाइकन वैसे बहुत ही अच्छा वाला है. सो दिस डजंट हैव ए 360 डिग्री कैमरा. सो आपको पार्किंग करने में बहुत ही खतरनाक वाला प्रॉब्लम है. इफ़ यू आर गोइंग टू एनी मॉल्स, दुबई में से मॉल से पार्किंग बहुत छोटा छोटा रहता है. इट्स वेरी डेंजरस टू टेक दोज कार्स टू दोज मॉल्स, क्योंकि आगे तरफ पार्किंग करो तो आगे में सेंसर नहीं है, पीछे तरफ करो तो पीछे वाला कैमरा इतना अच्छा दिखता नहीं है. सो इट्स लाइक यू नीड टू बी ए वेरी प्रो ड्राइवर टू लिव डेली विद दिस कार, क्योंकि आपको सोच के ही जाना पड़ेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. बर दुबई तो आपको ये कार को आप लेके नहीं, अगर लेके जाओगे आगे या पीछे कहीं ना कहीं आप ठोक के आओगे ही आओगे. नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग इज द सस्पेंसन. सस्पेंसन इज़ वेरी हार्ड फॉर्म. सो आपको लगेगा कि आप रोड पे ही जा रहे हो, रोड पे पूरा गाड़ी तो नीचे है ही है, एंड सस्पेंसन इज़ वेरी हार्ड. इट्स मोर फोकस टुवर्ड द ट्रैक ऑफ कोर्स. तो उसलिए बहुत ही हार्ड सस्पेंशन है. रोड में कहीं भी आपको गड्ढे मिल गए या हम्स मिल गए, स्पीड ब्रेकर्स कहीं भी कुछ भी मिल गया, अगर आपको पूरा आपको फील होने वाला है. सो बेसिकली इट्स नॉट ए वेरी स्मूथ राइड, इट्स लाइक ए वेरी बम्पी राइड, क्योंकि रोड में जो भी होगा आपको टोटली आपको डायरेक्टली आपको फील होने वाला है, बिकॉज अगेन द सस्पेंशन इज़ वेरी टफ. तो अगर आप नया कॉन्फिग कर रहे हो, आई डोंट थिंक सो दे हैव द PASM, बट इफ दे हैव it's better to just go ahead and select that add-on. And if you're looking for a family car, this is not a family car. आप देख सकते हो पीछे में पूरा रोल केज है. there are not seats at all, and ये कार्बन बकेट सीट्स है. अपना वाइफ कोई बैठा नहीं सकते, क्योंकि जो ये सीट में एक बार बैठेगा वो यहाँ से वो निकल नहीं सकता. सो दिस बेसिकली कार इज ओनली फॉर यू, डेडिकेटेड ओनली ए ड्राइवर्स कार. अगर आप अकेले चलाने वाले हो दिस इज़ द कार फॉर यू. आप किसी को साइड में बैठा नहीं सकते, क्योंकि वो बैठते ही बोले कि अबे ये क्या बेकार वाला सीट है, मैं बाहर भी नहीं जा पा रहा हूँ, बैठ भी नहीं पा रहा हूँ. अगर भी बैठ रहा हूँ रोड में इतना गड्ढे जब हो रहा है, इतना फील क्यों हो रहा है, ये क्या फालतू वाला सस्पेंशन है. पीपल विल बी हैविंग ए लॉट ऑफ इशूज़, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि ड्राइवर इज़ द वन हु इज़ एक्चुअली एंजॉइंग द होल एक्सपीरियंस. दिस इज़ नॉट ए पैसेंजर्स कार. पैसेंजर को ये गाड़ी में कभी भी नहीं बैठाना चाहिए. देयर इज़ अ रोल केस, देयर आर नो एक्स्ट्रा पैसेंजर्स, एंड ये वाला स्पोर्ट्स बकेट सीट में कोई भी नहीं बैठ सकता. एंड ऑन टॉप देयर आर नो स्पेस एट ऑल. आपको पीछे में इंजन है, ऑफ कोर्स देयर इज नो स्पेस. आगे में भी इसका रेडिएटर है, आगे में अगेन नो स्पेस. तो बेसिकली यहाँ पे आपको कोई भी ट्रंक या फ्रंक
कोई भी स्पेस नहीं मिलता। आपको कुछ भी अगर रखना है या रखना है, पकड़ना है, कुछ भी करना है, आपको सीट में ही रखना पड़ेगा और कहीं भी जगह नहीं है कार में। मतलब बेसिकली यू कैन नॉट टेक दिस कार टू ए मॉल एंड गेट योर स्टफ एंड गेट इनसाइड द कार एंड गो बैक टू होम। दिस इज नॉट ए मॉल कार, दिस इज ओनली ए ट्रैक कार और समवेयर यू आर ओनली गोइंग अलोन विदाउट एनीथिंग। मे बी एक लैपटॉप बैग लेके जा सकते हो बट नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। टेल यू दिस इज ए वेरी हाई रेविंग इंजन कार, सो मतलब दिस बेसिकली वांट्स टू जस्ट गो 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 गो। सो आप इसको स्लो चलाओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होगा तो यू नीड इट टू गो फास्ट फास्ट फास्ट, यू जस्ट हैव टू कीप इट गोइंग। इसीलिए दिस इज समथिंग मेड ओनली फॉर द ट्रैक, जहाँ पे आपको एक्चुअली रोड रहती है, खाली रहता है, यू एक्चुअली कैन पुश 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 पुश, क्योंकि इसको मतलब दिस कार ओनली वांट्स टू गो फास्ट फास्ट फास्ट। 7-8-9 हज़ार RPM पे ही ये मज़ा आता है, उसके नीचे इतना मज़ा भी नहीं आता। दिस जस्ट फील्स लाइक ए रेगुलर 911 बिलो दैट 7000 RPM आई वुड से। एंड सिंस इट्स ए वेरी हाई रेविंग मशीन, हाई रेविंग इंजन, इसका आपका मेंटेनेंस भी जल्दी आएगा, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस पे खर्चा होगा, सर्विस बिल्स भी बड़े हो जाएंगे, कूलेंट हो गया, इंजन ऑयल चेंज होगी, ये भी आपको जल्दी जल्दी इंटरवल्स में आ जाएंगे। बहुत हाई रेविंग इंजन है ऑफ कोर्स, सो आपको इंजन ऑयल बहुत जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ेगा, कूलेंट चेक, कूलेंट टॉपअप, ये सभी जल्दी करना पड़ेगा। सो सर्विस पैकेज इज गोइंग टू बी मैसिव फॉर दिस। तो वारंटी पैकेज पकड़ लो, सर्विस पैकेज पकड़ लो, it's gonna be expensive for those cars. And next, this is not something what you can drive for very long distance, क्योंकि seats are good but not I would not say like very comfortable. I mean for me it's fine, I can just get used to it, but बहुत लोगों के लिए it will be like अरे ये क्या सीट बना दिया, क्या सीट है, because this is basically track focused car। उनको वेट नीचे रखना है, सब कुछ जितना कम स्ट्रिप डाउन कर सकते हैं उन्होंने किया हुआ है। सो बहुत लंबे अगर आपको डिस्टेंस चलाना है, दिस इज़ नॉट द कार फॉर यू, अगर बहुत लंबे डिस्टेंस के लिए आप ढूंढ रहे हो। एंड सेकेंड, द इंटीरियर इज गोइंग टू बी, इंडोर पार्ट इज गोइंग टू बी लाउड बिकॉज इट्स ए वेरी हाई रेविंग इंजन। ट्रैक मोड हो गया, स्पोर्ट्स मोड हो गया, नॉर्मल मोड हो गया, इन ऑल द 3 मोड्स इट्स गोना बी लाउड। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि जी वैगन की तरह पूरा साइलेंट हो जाए कुछ भी। द इंडोर जैसे कांच बंद भी हो, स्टिल द कार इज गोना बी लाउड। एंड मे बी इफ यू आर समवन हु लाइक्स इट वेरी साइलेंट, दिस इज नॉट द कार फॉर यू। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली यू गॉट टू लव दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक भी मार देना, दोस्तों से भी शेयर कर देना। अगर आपको GT3 RS या GT3 और GT3 अगर किसी में भी आपका एलोकेशन में है या फिर यू आर एलिजिबल टू बाय दिस कार, इफ यू हैव द मनी रेडी, दिस वीडियो शुड एब्सोल्युटली गिव यू ए हेड्स अप कि क्या आपको ये कार में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई वुड से इफ़ यू आर समवन हु इज़ वेरी रिच एंड आपको पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड इफ यू हैव अ ह्यूज गराज, आई वुड से गो हेड एंड बाय इट, डू नॉट इवन थिंक मच। इसको भी ले लो, एक टर्बोइस भी ले लो, एक GTS भी ले सकते हो। बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ लाइक मी, जिसको गैरेज में ओनली और एक एक्स्ट्रा कार फिट हो सकता है, एंड हु इज़ नॉट लाइक उबर रिच टू बाय मल्टीपल कार्स, देन आई वुड से I just have to think a bit more, क्योंकि GTS जो है, GTS like more than enough, it's crazy fast, GTS is faster than GT3 as well, and GTS में 4 seats भी है। My family, I have a son as well, so sometimes me and Tapas and family or sometimes we travel as well, so at least वो उसमें 2-3 seats extra है, तो at least we can travel as a family। Sometimes of course family are not going to love it क्योंकि the seats are very small, but still, and convertible भी आपको मिल सकता है GTS में, but GT3 and GT3 RS में convertible नहीं मिल सकता, पीछे में सीट नहीं मिलता, suspension is very tough, the seats are very tough to get in, get out, and it's actually a driver's car. If you're someone who is looking to drive like whole day and stay engaged to the drive, go ahead and get this car. So I just have to make the decision a bit more, maybe I need to think more a bit कि अपने को क्या डिसीजन लेना चाहिए, because I'm like right now screwed between 2 options, क्योंकि GT3, क्योंकि the problem with me is like if I buy something, let's say Turbo S या GTS or Turbo, then maybe उसके बाद 2-3 साल के बाद फिर सोचेंगे कि अभी चलो ये हो गया, अभी GT3 RS भी सोचते हैं कि ये करते हो। एंड द थिंग इज 2026 में ड्यू टू Euro 7 लॉज, मोस्ट प्रॉब्ली द नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो NA जो रहता है वो टोटली बंद हो जाएगा। पोर्शे विल नॉट बी मेकिंग नेचुरली aspirated engines anymore after 2026. So only if you are eligible to buy, if you have the money ready, and if you're really looking to buy a naturally aspirated engine like a screaming eagle car, then GT3 RS. But yes, अगर आपको practicality देखना है तो I would say this is not a very practical car, not a daily driving car of course, but yes, if you want to get used to it, you just love this car, love the way it looks, then go ahead, get it. Nothing like a GT3 and GT3 RS. Peace.